Friends, two incidents have taken place recently. One is a statement by the Honorable Prime Minister regarding the issue of Kashmir. He made one of the most important lines in his statement was that they had almost arrived at a settlement so far as Kashmir dispute is concerned. 2 days went by and then the issue was sought to be raked up by none other than the Aam Aadmi Party, founder member Shri Prashant Bhushan. Now, is it just a coincidence or a synergized effort to keep a subject hot and heated up while everything in Kashmir seems to be frozen? The icy cold winds have frozen the issue of Kashmir. There is no infiltration that is happening right now due to the cold weather, and no fresh incident which has happened between Pakistan and India. In spite of that, an issue is sought to be raked up, is what I am assuming, and it is all in keeping the elections or some other hidden agenda in mind, is what I can presume. The same gentleman made a statement in 2011 regarding plebiscite. So far as the stated policy of India is concerned, the stated policy of India has been consistent and is enumerated in the 1994 parliamentary resolution, which says Kashmir is and shall remain the integrated part of India, and the only unfinished agenda which India has is with respect to POK. 70% of the POK is Gilgit and Baltistan. Now, while Prime Minister seemed to have made a statement regarding a solution, has he spoken about, or did the Pakistan and Baltistan formed part of that solution process? What is the stand of that particular aspect? So far as India is concerned, we are very clear, but what was decided India has not been taken into confidence. Next, the open border between India and Pakistan, especially in Kashmir, is what has been the stated policy of the Pakistanis. Now, when Government of India is repeating what Pakistan is stating, is what exactly is the point that is sought to be made, and the referendum issue again has been brought in. Now, we condemn such statements and take strong objection to such statements made by the two leaders, and we say that they are working in tandem with each other, or they are synergizing with each other, or it's just a mere coincidence that two things are spoken about at a prime time when election process is due in the country, and then another leader from Aam Aadmi Party comes up and says that this is not the stated position of the party, but we have seen that the Aam Aadmi Party stand has changed repeatedly, whether it is the issue of referendum in Delhi, it is the issue of electricity, water, or corruption cases, pursuing the corruption cases against the Congress party leaders. The person who made a statement in December 2011 that they have sufficient proofs against Sheila Dikshit government regarding corruption charges seems to have suggested today that he doesn't have any proof, and in fact he needs proofs to be given by the opposition. The referendum which was conducted in Delhi, I went to the counts, and the counts showed that 22 lakh people, 22 lakh plus people had voted for the Aam Aadmi Party. 23 lakh 22,000 people
voted for AAP in Delhi Assembly election, and out of which a mere 8.5% of the people said that they should form a government along with the Congress party, and 90% people said that they should pursue cases against the Congress party. And they have actually not honored the words of their own voters, and it is in this conjunction that a farce referendum which was done by the party here in Delhi is seeking referendum on an issue like Kashmir, where it's a frozen deal, it cannot be changed, and the stated position of India is recorded by the 1994 resolution of the parliament. मित्रों, जो बयान आया है, दो बयान आए हैं। पहला बयान प्रधानमंत्री जी का आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो तकरीबन एक नतीजे पर पहुंच चुके थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में समझौते को लेकर कश्मीर के विषय पर, लेकिन उन्होंने उस संदर्भ में कुछ बताया नहीं कि क्या वो समझौता था और उस समझौते की बारीकियां क्या थी। उस विषय में उन्होंने कोई जानकारी प्राप्त हमें नहीं करवाई। लेकिन उसका एक दिन गुजरा और ठीक दूसरे दिन प्रशांत भूषण जी ने एक इंटरव्यू में एक टीवी चैनल को कहा कि कश्मीर के मसले पर उनकी ये मान्यता है कि रेफरेंडम होना चाहिए। तो ये केवल एक ऐसा विषय नहीं है जो कि आज गर्मी पर है। आज कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दौर में या दोनों देशों के बीच में ये कई विषयों पर निर्णय हो चुके हैं कि समझौता का मतलब क्या होगा और समझौते का मतलब क्या नहीं हो सकता। ऐसे में कश्मीर के मुद्दे को दोबारा से गर्म करना एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है या एक हल्केपन में हो गया, इसकी जानकारी हमें नहीं है और हम चाहेंगे कि ये दोनों अपनी इस वक्तव्य का स्पष्टीकरण दें। दूसरा, जब समझौते का विषय आता है तो क्या समझौते में बाल्टिस्तान और गिलगिट जो कि 70% पीओके का हिस्सा है उसको लेकर समझौते में कोई बात हुई थी? और यहाँ तक ओपन बॉर्डर्स की बात आती है तो वो तो स्टेटेड पोजीशन पाकिस्तान की है। तो क्या हम पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन पर जा रहे हैं बिना जिहादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रदेश में पैदा हुआ है उसको ख़त्म किए बिना? किसी भी देश की सिक्योरिटी और सुरक्षा का विषय वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तय करते हैं, ना कि कोई और लोग जो कि साइड्स में बैठे हुए राजनीतिज्ञ हों और सुरक्षा कर्मियों की जानकारी के बिना कोई भी वक्तव्य किसी भी समय दे दिया जाए। सबसे मुख्य विषय जो कि मैं अंग्रेजी में भी दोहराना चाहती हूँ वो है कि अब समय आ गया है जब नेटो की ताकतें जो हैं उनको हटाया जा रहा है अफगानिस्तान से। तो जो तालिबानी ताकतें हैं उन्होंने अपना घर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो पंजाब का हिस्सा है वहाँ पर कर लिया है और उनको एक साजिश के तहत कहीं ना कहीं कश्मीर की तरफ धकेलने की कोशिश है। और इसीलिए भारत की सुरक्षा, खास तौर पे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब देश में वंदे मातरम का नारा लगता है या भारत माता की जय का नारा लगता है तो जाहिर सी बात है कि उसका सर कटा हुआ हम लोग नहीं देखना चाहते। It is in this context that people who have been shouting the slogan of Vande Mataram and Bharat Mata Ki Jai must understand that you cannot decapitate the same Bharat Mata who stands for all of us, and the feeling, the jazba of nationalism cannot be diluted in these circumstances, especially in the background that NATO forces are seeking a withdrawal from Afghanistan. A lot of Talibani forces are shifting their base to the Pakistan, the Punjab part of Pakistan, and they are sought to be pushed into Kashmir. So moving or any alteration so far as the armed forces deployment is concerned
cannot be decided by people who are sitting on the fringes has necessarily to be decided by the security forces. The security of the nation is of utmost importance to any nation, and especially we as a political party, BJP, have shown in the past and even today that we shall not compromise in this fashion on the issue of Kashmir. The founder of BJP, Shri Dr. Shyama Prasad Mukherjee, has sacrificed his life for the cause of Kashmir. So there is no question of any dilution of the stand on Kashmir. कश्मीर के विषय पर भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांतवादी निर्णय है वो बहुत पुराना है, और उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग जिन्होंने देश के नाम पर अपने जीवन का बलिदान दिया, वो महत्वपूर्ण लोग हैं और वही हमारी सोच को तय करते हैं। ऐसे में कश्मीर के विषय पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, बदलाव भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। खास तौर पर जब नेटो की जो सिपाही हैं वो अफगानिस्तान से जा रहे हैं और वो तमाम तालिबान और जिहादी लोग वापस पाकिस्तान और पंजाब जो पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कश्मीर की ओर धकेलने की कोशिश है। ऐसी स्थिति में कश्मीर से आर्मी को या फोर्सेस को हटाना किस खतरनाक हिस्से का खेल हो सकता है, उसमें हम साझेदारी नहीं करेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से आर्मी को कितना कहाँ डिप्लॉय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो जो विशेषज्ञ हैं इस विषय के, ये निर्णय उन्हीं का होगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न आप लोगों ने? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने बेशक ये कहा हो कि ये उनकी पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन ये बयान तो श्री प्रशांत भूषण का 2011 में भी था। तो बावजूद इसके कि उन व्यक्ति की जो मानसिकता है वो सामने आती है, तो उनकी पार्टी ने क्या निर्णय लिया है प्रशांत भूषण जी के साथ व्यवहार करने का, वो बताएं। Aam Aadmi Party leaders have been continuously saying that we should contest Lok Sabha, it should become the Prime Minister. Do you think we should take this call? No, who am I to make anybody the Prime Minister? I think the Prime Minister of the country will be made by the people of this country and mandate of this country, and I'm sure the mandate is very evident in the 4 state elections. मैम, दिल्ली का इलेक्शन ही अभी देखिए, उसके बाद एकदम से पीएम के ख्वाब देखना कहीं कुछ too early, too much नहीं होता है? नहीं, देखिए, मैं इस पे कोई वक्तव्य नहीं देना चाहती, और उसका कारण है कि हर व्यक्ति को ख्वाब देखने का भी अधिकार है और किसी के ख्वाबों पर रोक टोक करने का अधिकार मुझे नहीं है। I'm sure he's backed by many lawyers which are working on the contrary purposes. They'll suggest him ways and means. But right now the issue is all the FIRs and the investigation which are pending against Pradeep Sharma, which include plastic surgery of his face and procuring a false ID in the form of a passport, which he tried to seek. Apart from corruption cases. कल नरेंद्र मोदी जी ने बाबा रामदेव के मंच पे कहा था कि टैक्स रिफॉर्म और टैक्स को खत्म करना या कम करना। अरविंद केजरीवाल इस पे कह रहे हैं कि नहीं, व्यवहारिक नहीं है मॉडर्न एज में टैक्स को पूरी तरह से खत्म करना। देखिए, व्यवहारिक क्या है क्या नहीं वो तो जब किया जाएगा तब बताएंगे उनको, क्योंकि व्यवहारिक तो 50% बिजली के दाम और 700 लीटर पानी भी व्यवहारिक नहीं था, लेकिन उन्होंने 666 करके जो तरकीब निकाली वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ कहा है तो सोच समझ कर बयान दिया, और ख़ास तौर पे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कुछ कहा है तो उसके पीछे पूरी एक पढ़ाई और एक सोच है जो समय अनुसार हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सुशील कुमार शिंदे ने कहा है I have not seen a single accused who offers the CBI or police investigation. It is for the state to take a call as to what kind of investigation needs to be done, and state does not see the faces. The law of the land has to be applied to all, one and all, irrespective of the face of the person.
मैम, अगर एनडीए 2014 में सत्ता में आती है तो पाकिस्तान को लेकर क्या पॉलिसी जाएगी? वही अटल बिहारी वाजपेयी वाली की कुछ डिफरेंट रहेगा इस बार? जब आएंगे तो आपको बताएंगे, सत्ता में आएंगे तो बताएंगे आपको। मगर जो पॉलिसी होती है, जो विदेश नीति होती है देश की, वो पार्टी के आने या जाने से नहीं बदलती, वो देश की नीति होती है। मैडम, शिंदे जी ने कहा है कि जासूसी कांड पे जल्द से जल्द जज की नियुक्ति की जाएगी। मैं क्या कह सकती हूँ उनको, मतलब वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ठीक है, मैं कुछ उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहती। इसरो पे देखिए, इसरो पे धन्यवाद, आपने अनामिका ये प्रश्न पूछा, लेकिन उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज ऐसा दिन है कि कल जब हमारे देश ने GSLV D5 को भेजा अंतरिक्ष में, बहुत खुशी हुई अपने वैज्ञानिकों के अचीवमेंट पर, लेकिन ये 13 वर्ष डिलेड है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट था, ये सन 2000 में पूरा होना था, और 2000 में जिस व्यक्ति के कारण पूरा होना था उनका नाम नंबी नारायण है, और उस वैज्ञानिक को, जिसको 3 बार अमेरिका ने नागरिकता देने की कोशिश की, उनको अमेरिका में रखने की कोशिश की, और उस व्यक्ति ने वो सबको ठुकराया और वापस भारतवर्ष आकर इसरो के लिए काम करना पसंद किया। उसके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर एक जासूसी कांड में उसको बंद किया गया, और उसके बाद CBI तहकीकात ने बताया कि वो सारा जो केस था वो झूठा था और उस व्यक्ति को झूठा फंसाया गया था। तो मुझे कहीं कमी दिखाई दी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस स्टेटमेंट आया और सरकार ने वैज्ञानिकों के काम पर क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इन व्यक्ति के ऊपर जो केस लगा था, ना तो उस विषय पर कुछ काम किया, ना ही 2 लाइन 2 वाक्य उस व्यक्ति की तारीफ में कहे। तो ये मुझे लगता है कि एक अंग्रेजी का शब्द है इनग्रेट्स, कि हम लोग कहीं गैर जिम्मेदार भारतीय ना हो जाएं, कि जहां पर वी बिकम अ नेशन ऑफ इनग्रेट्स एंड स्टॉप रिकग्नाइजिंग आवर ओन हीरोज। Jairam Ramesh has said that if Congress and BJP does not learn from newcomers like Aam Aadmi Party, then very soon the parties like Congress and BJP will be history. I'm sure he's talking about his own party. My next question to him will be, when is he joining Aam Aadmi Party? मैम, क्या लगता है, मैम, क्या नरेंद्र मोदी को विधेयक को रोकने के लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी का सहारा लेगी और आगे चलेगी? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो कश्मीर का विषय हो, चाहे तमाम विषय हो, उनकी राजनीति एक ही जैसी है, चाहे वो पानी, बिजली और डोल की राजनीति हो। तो वो किसी को सामर्थ्यवान बनाने की राजनीति नहीं है, वो सामर्थ्य खत्म करने वाली राजनीति, और दोनों एक ही तरीके की राजनीति कर रहे हैं, दोनों में अंतर कोई नहीं है। देखिए, जनता दल है, सपा है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, DMK है, आप इनमें से जिसको वोट देंगे वो कांग्रेस ही तो सरकार बना रही है लगातार, वो कांग्रेस ही के चेहरे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।